हाँ जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4E। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4G ਤੇ 4H ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब जेकर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆਉਣਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨਰ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MIJ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ M ਫੋਰ ਮਾਈਨਰ, I ਆਪਣੀ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, J ਆਪਣਾ ਕॉलम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 9 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ 8 ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਰ ਆਫ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ 8 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ 8 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਨਰ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਰ ਆਫ 8 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਥਰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਬਚਿਆ 1 4 3 6। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 6 - 12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -6। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਆਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਚਿਆ 1 3 7 9। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ 9 - 21 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -12। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਰ ਦੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ MIJ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਰ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ M। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ 5 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਇਹ ਵਾਲਾ। ठीक है, सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम इस तरह। सो इट मीन हम 5 का माइनर कितना है M सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। सो यदा मतलब कि माइनर फाइंड करना सैकेंड रो सैकेंड कॉलम का इस तरह 1 3 7 9। सो आंसर इज -12। ठीक है, सो इसी तरह जेकर आप माइनर ऑफ 8 फाइंड किया है, सो 8 की जो एलीमेंट की पोजीशन केड़ी है थर्ड रो सैकेंड कॉलम। ठीक है, ये वाला। फिर आप किमें लिखेंगे मैथमेटिक सिंबल के अकॉर्डिंग M लिख के M फॉर माइनर। सो 8 की एलीमेंट एंट्री केड़ी है थर्ड रो सैकेंड कॉलम, M 3 2। ये थर्ड रो सैकेंड कॉलम छड्ड के
1 3 4 6 ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਡਿਨੋਟ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, तो देखो आप एक एग्जाम्पल होर करते हैं, शायद तुहानूं वधिया समझ आ जाए कि आप 3/3 ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट लैट कर लें 1 5 6 7 8 9 3 4 2। सो माइनर फाइंड करते हैं M13। सो M13 का की मतलब कि फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, सो 7 8 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 28 माइनस 24 इज इक्वल 4 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਥਰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ। तो एक ये होर बेसिक कंसैप्ट कोई याद रखना, माइनर ऑफ एन एलीमेंट, माइनर ऑफ एन एलीमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। सो ये रिजल्ट याद रखना, इसका मीनिंग देखो की है कि मीनस आप किसी भी माइनर का सॉरी किसी भी एलीमेंट का जेकर माइनर फाइंड करना है, सो वो डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है n माइनस 1 हो जाएगा, जोड़ा अपना कि ओरिजिनल डिटरमिनेंट के ऑर्डर नालों। ठीक है, मतलब समझो ध्यान फिर कि किसी भी एलीमेंट का आप माइनर फाइंड करना है। ठीक है, सो माइनर का जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर है, ये वाले माइनर के डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर कितना n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब देखो जिमें कि हम आ डिटरमिनेंट लैट किया, यदा ऑर्डर कितना 3/3 है। हम आप ये वाले एलीमेंट का माइनर का फाइंड करना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो हम यदा डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना 2/2 हो गया। ठीक है, मतलब ये एक घट गया, ये n सी ये n माइनस 1 है। सो ये सी ये कंसैप्ट। सो ये तो याद रखना कि मतलब कि इंडरैक्टली आप कह सकते हैं कि माइनर के जो एलीमेंट का माइनर है तो वह डिटरमिनेंट की है एक घट होएगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट के ऑर्डर नालों। ठीक है, माइनर के एलीमेंट के माइनर का डिटरमिनेंट का ऑर्डर ओरिजिनल डिटरमिनेंट नालों एक घट होगा। ठीक है, सो इस तरह याद रखियो। हुण आपां गल करते हैं कोफैक्टर बारे। कोफैक्टर, सो ये भी बेसिक कंसैप्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ खास नवा नहीं आप करना, जिमें आप माइनर फाइंड किया उवें आप कोफैक्टर फाइंड करांगे। ठीक है, तो कोफैक्टर डिनोट करता है AIJ नाल, मतलब कोफैक्टर का सिंबल की A है, I अपनी रो है, J अपनी की कॉलम है। मीन सैकेंड कि ए जिमें आप इतने थर्ड रो फस्ट कॉलम का माइनर फाइंड किया उवें थर्ड रो फस्ट कॉलम का कोफैक्टर फाइंड करांगे इस तरह। ठीक है, सो ए मैंने कोफैक्टर, M मैंने माइनर। सो इसका फॉर्मूला की है देखो, माइनस दी पावर I प्लस J इंटू माइनर। ठीक है, भी जिमें आप माइनर फाइंड करना वो तो करना ही करना है, बस माइनर के अगे साइन किया वो नैगेटिव का, तो नैगेटिव पावर कितनी है I प्लस J। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है। सो हम देखो आप एक एग्जाम्पल करते हैं, यही एग्जाम्पल के नाल आपको समझ आ जाएगा कि फर्स्ट 1 5 6 7 8 9 3 4 2 ये एग्जाम्पल है। तो पहला आप इसका माइनर फाइंड करते हैं, M सैकेंड रो थर्ड कॉलम ये वाला। सो सैकेंड रो थर्ड कॉलम के कॉरस्पोंडिंग अपने को डिटरमिनेंट बचेगा 1 5 3 4। इसमें सॉल्व कर दो, 4 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11। ठीक है, ये माइनर है। हुण गल करते कोफैक्टर की, सेम उवें सैकेंड रो थर्ड कॉलम आप उवें रखेंगे। ठीक है, बट ये देखो फॉर्मूला कि कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस की पावर I प्लस J इंटू माइनर। सो माइनर के अगे की है माइनस ला देनी है, तो माइनस की पावर जी रो एंड कॉलम आप फाइंड कर रहे हैं, इन्होंने दोनों कर दो ये ऐड। ठीक है, सो सॉल्व कर दें आप, माइनस की पावर 5 हो जाएगा। सो इनू सॉल्व किया अपना आंसर है माइनस 11, तो नैगेटिव की पावर ऑड है, ये भी नैगेटिव हो जाएगा माइनस 11,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। सो एक होर एग्जाम्पल देखो ये नाल, देखो हुण आपां कोफैक्टर फाइंड करना, कोई मर्जी 3 रो सैकेंड कॉलम, ये वाला शायद पर ये तो कर चुके हो शायद, ठीक है, बट देखो सैकेंड रो थर्ड कॉलम किया आप। सो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब कि थर्ड रो सैकेंड कॉलम, इन्हू छड्ड के जी डिटरमिनेंट बचेगा 1 4 3 6। सो इन्ना जिन्ना आपां स्टैप किया, ये स्टैप है माइनर का। हुण कोफैक्टर वास्ते माइनस की पावर इन्होंने दोनों कर देना प्लस, -6 -12, ठीक है। तो माइनस इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होर स्टैप देखो, हम आप कोफैक्टर फाइंड करते हैं सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, ठीक है। सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, ठीक है। सो अपने को बचेगा 1 3 4 सैकेंड रो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम है, तो 7 9 बचेगा, ओके। सो देखो हम जिन्ना स्टैप कितने माइनर है, सो कोफैक्टर वास्ते माइनस की पावर 2 + 2 हो जाएगा ना, आई बात समझ। सो माइनस की पावर 4 है, ये तो अपना इवन हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इन्हें सॉल्व कर दो, 9 - 21 = -12, ओके। सो ये अपना की है कोफैक्टर है सैकेंड रो सैकेंड कॉलम का, ठीक है। सो इस तरह के आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह आप माइनर फाइंड कर सकते हैं। सो ये सी अपनी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4E की, ओके। तो इस तो बाद आप कुछ सम ट्राई करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 4E। सो फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट पार्ट कि आपको डिटरमिनेंट गिवन है 1A 1B। सो माइनर ऑफ B फाइंड करना है। सो माइनर ऑफ B अपना क्या सैकेंड रो सैकेंड कॉलम है, ये वाला। सो M सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम छड्ड के अपने को एलीमेंट बचा, कल 1 ही बचा। सो ये की है आंसर है, ओके। सो सैकेंड पार्ट की माइनर ऑफ D फाइंड करना है। सो माइनर ऑफ D क्या है, सेम वही सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। सो इसका आंसर कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कोफैक्टर ऑफ Y फाइंड करना है। सो कोफैक्टर ऑफ Y अपना फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। सो इट मीन कोफैक्टर सिंबल होंगे अपना A। सो Y की एलीमेंट एंट्री करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फिर फॉर्मूला की होगा माइनस की पावर 1 + 1 इंटू M 1 1, यही हो जाएगा। सो मतलब देखो कि माइनस की पावर 2। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छड्ड के अपने को एलीमेंट बचा C, तो आंसर आ जाएगा C, ठीक है। सो इसी तरह सम नंबर 3 देखो। सो सम नंबर 3 में की है, आपको ये वाला डिटरमिनेंट गिवन है। सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम का माइनर फाइंड करना है। सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सो अपने को डिटरमिनेंट बचेगा 1 3 5 8, ये वाला 1 3 5 8 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व कर दो। सो 8 - 15 आंसर आ जाएगा -7, ओके, इस तरह। सो अगे देखो सम नंबर 4 देखो, फाइंड द ऑल कोफैक्टर। एंड सम नंबर 5 भी देखो, ये माइनर एंड कोफैक्टर दोनों फाइंड करने हैं। सो दोनों सम बिल्कुल सेम नहीं। सो आप सम नंबर 5 का तो सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करावांगे, बाकी तुसीं अपने आप करने हैं, ठीक है। सो मैं तो सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराने लगा, देखो। तो देखो हम ये कोफैक्टर के माइनर फाइंड करने, ये वाले डिटरमिनेंट के। सो देखो फर्स्ट आप करते हैं माइनर फाइंड M 1 1। सो इसका मतलब कि पहली रो पहला कॉलम छड्ड के बचा गया 3। फिर आप फाइंड करें फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। सो की बचा है, 0 बचे। फिर सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखो, तो बचा -4 है। तो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग बचा है कलर 2। सो ये अपने हो गए माइनर, ठीक है। सो उस तो बाद देखो कोफैक्टर A 1 1। सो स्टार्टिंग होमी, बट ये अगे माइनस की पावर 1 + 1। आप कहेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छड्ड के अपने को की बचा कलर 3 बचा। तो माइनस की पावर ईवन हो जाएगा। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाएगा, कलर 3 आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को बचा 0।
सो इंटू 0 आ जाऊगा, सो अपना आंसर 0 ही हो जाऊगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की कोरसपोंडिंग माइनस की पावर 1 + 3, सो फर्स्ट रो सॉरी इतने सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम इतने 2 + 1 आएगा। ठीक है, देखो जरा सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू माइनस की पावर 2 + 1, तो बचेगा इतने -4। सो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम माइनस की पावर 2 + 2 × 2। ठीक है, सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर इज पॉजिटिव। सो ये अपने की सारे कोफैक्टर ने, तो ये वाले अपने की ने माइनर। ठीक है, सो इसी तरह सम नंबर 5 का जो सैकेंड पार्ट है तुम सॉल्व कर देना, तो सम नंबर 4 भी। ओके, सो अगे देखो सम नंबर 6 तो 6 दोनों पार्ट बिल्कुल सेम ने, सो इतने वाई नहीं 7 आएगा। ठीक है, सो मैं तुम्हें सम नंबर 6 सैकेंड पार्ट सॉल्व करके दिखावांगा, फर्स्ट पार्ट तुम अपने आप ट्राई करना, तो यदा आंसर भी जरूर दसना कमेंट में। ठीक है, हाँ सम नंबर 6 का सैकेंड पार्ट देखो ये वाला। सो मैं ये वाले डिटरमिनेंट विचों आपां जो एलीमेंट -5 है, 3 है, 6 है, इन तीनों एलीमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, सो देखो हम पहला फाइंड करते हैं -5 का कोफैक्टर, मीन कोफैक्टर ऑफ -5। और जो -5 है वो एलीमेंट एंट्री देखो कि पोजीशन पर है, सैकेंड रो तो थर्ड कॉलम के उपर है। ठीक है, इट में कोफैक्टर फाइंड करेंगे आप ए सैकेंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस की पावर आ जाएगी 2 + 3, तो डिटरमिनेंट करेंगे फाइंड सैकेंड रो तो थर्ड कॉलम छड्ड के ਜਿਹੜੇ अपने एलीमेंट एंट्री बचनियाँ, मीन 5 - 1 तो -1 -2, 5 - 1 -1 -2, सो इतने माइनस ही आ जाएगा पूरा सॉल्व हो गया ये वाला। सो अपने को बचेगा -10 तो -1, यानी ओवरऑल आंसर आएगा +11। ठीक है, सो हम आप फाइंड करना कोफैक्टर 3 का, कोफैक्टर ऑफ 3 मतलब ए वाला। सो कोफैक्टर ऑफ 3 की एलीमेंट एंट्री केड़ी है, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम है, तो माइनस की पावर 2 + 2, सो डिटर्मिनेंट आएगा सैकेंड रो सैकेंड कॉलम 5 4 -1 6, 5 4 -1 6। तो हम ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा ओवरऑल, इनू करते सॉल्व आप 30 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, सो कोफैक्टर फाइंड करना 6 का, कोफैक्टर ऑफ 6, सो कोफैक्टर ऑफ 6 कितना आएगा अपना थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस की पावर 3 + 3, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम छड्ड के अपने को मैट्रिक्स बचेगी 5 2 -1 तो 3, सो ये पॉजिटिव हो जाए पूरा, इतने 15 आ जाएगा, इतने +2 आ जाएगा, सो आंसर 17 आ जाएगा। ठीक है, सो ये सी अपना सम नंबर 6। सम नंबर 7 देखो, तो सम नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट ने, सो आप सैकेंड पार्ट कर लगे हैं कि फाइंड करना माइनर के कोफैक्टर। ठीक है, माइनर के कोफैक्टर फाइंड करना है, बट करना की देखो ईच एलीमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, मीन आप फर्स्ट कॉलम के हरेक एलीमेंट का माइनर भी फाइंड करना तो कोफैक्टर भी। तो देखो माइनर के आप फॉर्मूला पढ़ाई MI जे अपनी होंगी कॉलम, आई होंगे अपना रो। सो कॉलम बारे इन्होंने गल कर ली कि कॉलम कि फस्ट होए, मीन जे की वैल्यू तो 1 हो। ठीक है, जे की वैल्यू आप कितनी रखनी 1, सो इट मीन चेंज कौन हुआ रो, मीन आप आई की वैल्यू 1 भर सकते हैं, फिर आई की वैल्यू 2 भर सकते हैं, फिर आई की वैल्यू 3 भर सकते हैं। सो इट मीन आप माइनर कि फाइंड करना है M11 फिर M21 फिर M31, ये वाले माइनर फाइंड करने, यही कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, सो जे नू 1 क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने कंडीशन अप्लाई करती कि फस्ट कॉलम के एलीमेंट के माइनर के कोफैक्टर फाइंड करने हैं, मीन आप कॉलम फिक्स कर लाँगे तो रो चेंज करते जावांगे। ठीक है, सो देखो फस्ट आप फाइंड करते हैं M11, सो फस्ट रो फस्ट कॉलम,
सो बचेगा 5071 सॉल्व कर दो इनू सो आंसर आएगा 5 सो इस नाल कोफैक्टर सॉल्व कर दो सो कोफैक्टर फार्मूला की होगा माइनस दी पावर 1+1 सो सेम माइनर ए आ जाएगा सो ये तो पूरा बन जाएगा पॉजिटिव सो यदा आंसर कितना 5 ही आ जाएगा ठीक है सो हम माइनर फाइंड करना सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक सैकेंड रो ए वाला फर्स्ट कॉलम ए वाला तो बचेगा डिटर्मिनेंट 2 6 7 1 सॉल्व कर दो 2 - 42 इज इक्वल टू -40 सो इस चीज़ करो कोफैक्टर फाइंड आप करते हैं कि माइनस की पावर 2+1 आ जाएगा 2761 सो यदा पूरा आंसर बन जाएगा नैगेटिव तो यदा आंसर कितना -40 है सो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है सो उस तो बाद देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर सॉरी माइनर ठीक है सो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सो अपने को डिटर्मिनेंट बचेगा 2650 ठीक है सॉल्व करेंगे 0 - 30 सो आंसर आ जाए -30 ठीक है तो सैकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सो हम आप करना कोफैक्टर फाइंड सेम माइनस की पावर 3+1 तो डिटर्मिनेंट ही आएगा 2650 सो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यदा आंसर -30 रह जाएगा सो यदा आंसर की है -30 ओके सो ये आप माइनर के कोफैक्टर फाइंड करते फर्स्ट कॉलम के कोरसपोंडिंग बट उन्हें अपन डिटर्मिनेंट भी फाइंड करने क्या है कि कोरसपोंडिंग फर्स्ट कॉलम के कोरसपोंडिंग सो किमें करेंगे मीन द डिटर्मिनेंट आप पहला कॉलम फिक्स कर लेंगे रो चेंज करी जाएंगे सो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो इतने 0 ही आ जाएगा हम डिटर्मिनेंट देखो ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 5 7 0 1 फिर की है सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम सैकेंड रो सो इतने 2 6 7 1 आ जाएगा फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 5 0 ठीक है हम आप डिटर्मिनेंट भी फर्स्ट कॉलम के कोरसपोंडिंग फाइंड करेंगे सो ये 0 हो जाएगा -1 इन्हें सॉल्व कर दो 2 - 42 -40 आ जाएगा +3 0 - 30 आ जाएगा -30 सो ये 40 - 90 इज इक्वल टू 50 का आंसर है ओके सो ये सी सम नंबर 7 का सैकेंड पार्ट बाकी जो फर्स्ट पार्ट है तो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह ही है ये तुम अपने आप ट्राई करने हैं ओके सम नंबर 8 एंड 9 सो देखो सम नंबर जो 9 है बिल्कुल सम नंबर 7 नाल मैच करता है जो सम नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फर्स्ट कॉलम फिक्स ਕੀਤਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ थर्ड कॉलम फिक्स ਕਰਾਂਗੇ मीन ਆਪਾਂ फाइंड करना कोफैक्टर थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिर सैकेंड रो थर्ड कॉलम फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम इन्होंने तीनों का कोफैक्टर फाइंड करना तो ये तुम कोफैक्टर अपने आप ट्राई करने हैं ठीक है सो सम नंबर 8 है ये भी तुम अपने आप ट्राई करोगे ये हरेक कोफैक्टर हरेक माइनर फाइंड करना ठीक है सेम उसी तरह जिमें कि आप सम नंबर 4 या 5 किया सम नंबर 5 किया जिमें यदा माइनर से कोफैक्टर कढ़िया उवें यदा माइनर से कोफैक्टर कढ़ना है ठीक है तो उस तो बाद वह डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है ठीक है तो ये सम तुम 8वां तो 9वां अपने आप ट्राई करना सिंपल है हो जाएंगे सो हम सम नंबर 10 सॉल्व करते हैं ये भी सम नंबर 9 के नाल मैच करता है सो ये आप फर्स्ट रो नू फिक्स करना है ठीक है फर्स्ट रो नू फिक्स करना तो कोफैक्टर कढ़ने हैं तो फिर उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना सो देखो इस तरह सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मीन आप कोफैक्टर कढ़ना A11 मीन रो फिक्स कर लेंगे फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला फाइंड करना है ठीक है सो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस दी पावर 1+1 सो डिटर्मिनेंट बचेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग -1 0 -2 5 सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर होगा -5 ठीक है फिर आप करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
माइनस की पावर 1 + 2। सो फिर अपने को बचेगी फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग 2 4 0 5। सो नैगेटिव हो जू, इन्हें सॉल्व करते हैं 10 - 0। सो आंसर इज -10। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग माइनस की पावर 1 + 3। सो अपने को बचेगा डिटर्मिनेंट 2 4 -1 -2। सो पॉजिटिव, सो बचेगा -4 + 4। आंसर इज 0। ओके, सो कोफैक्टर पर फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। हम आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। सो डिटर्मिनेंट देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एलीमेंट एंट्री 1 तो ए वाला A1 1। फिर इतने आएगा माइनस लगा के प्लस लगा के A1 2 इंटू A1 2 तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, मीन हम आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि आप रो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप हरेक बारी की है रो की एलीमेंट पोजीशन अगे रखी है फर्स्ट रो। ठीक है, ये डायरैक्ट तरीका फाइंड करना। जेकर आप इन सिंपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए इस तरह तो भी अपना आंसर आ जाऊगा सही। ठीक है, सो देखो A1 1 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कि 1 है तो A1 1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, प्लस A1 2 कितना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है तो A1 2 की वैल्यू -10 है। ठीक है, तो A1 3 एलीमेंट कितना -3 है तो A1 3 वैल्यू 0। तो -5 -30 = -35 ये अपना आंसर। ठीक है, सो आप फार्मूला ध्यान समझो। आप डिटर्मिनेंट फाइंड किया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, सिंपल भी कर सकते जिवें पहला करते आए हैं, बट ये फार्मूला कोफैक्टर तो निकल के बने कोफैक्टर तो। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोडक्शन ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦਾ बट ਉਹ सॉरी ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। सो देखो फर्स्ट रो की गल हुई है तो आप हरे पहले नंबर से पहली रो ही रखांगे एलीमेंट के अकॉर्डिंग भी तो कोफैक्टर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, सो एक फॉर्मूला होर देखो आप करते हैं। जेकर आपको इतने सैकेंड रो के अकॉर्डिंग कहता क्वेश्चन जे सैकेंड रो बारे कहता दैन अपना डिटर्मिनेंट हो जाएगा सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर ऑफ सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते जे अपन सेकेंड रो कहता। ठीक है, सो ये अपना एलीमेंट है, ये अपना कोफैक्टर है। सो जेकर अपन सैकेंड कॉलम कहता फिर आप कॉलम फिक्स कर लेंगे, रो चेंज करते जाते। तो एलीमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलीमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो ये फॉर्मूला अपना होएगा कॉलम के कॉरस्पोंडिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला भी जरूर ध्यान ਨਾਲ समझना है। ठीक है, सो ये सी अपना सम नंबर 10। सम नंबर 11 देखो एंड ये अपना लास्ट सम है एक्सरसाइज का। सो हम इस डिटर्मिनेंट के सारे कोफैक्टर लभने हैं तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। जोड़ा ए अपना A1 1 ए वाला ये अपना की है एलीमेंट की पोजीशन है तो जो A31 है ये कोफैक्टर है। ओके, सो पहले आप माइनर फाइंड करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पोंडिंग। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पोंडिंग है 0 5 4 -7। ठीक है, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने। सो 0 - 20 = -20 आ जाएगा। सो इससे कोफैक्टर कर देने आप A1 1। सो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस की पावर 1 + 1 आ जाएगा 0 5 4 -7। सो ये पूरा पॉजिटिव बन जाऊगा तो यदा आंसर सेम हुई -20। ठीक है, उस बाद आप माइनर फाइंड करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के कॉरस्पोंडिंग आएगा 6 1 4 -7। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने -42 -4 = -46 ये वाला। ठीक है,
सो हुण आपां करदे कोफैक्टर। सो कोफैक्टर की होगा सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं आप माइनस द पावर 1 + 2 × M12 ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। सो ये नैगेटिव हो जाऊगा तो M12 की वैल्यू कितनी है -46 ही है, माइनस माइनस पॉजिटिव। ओके उस तो बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6105, सो आंसर आ जाएगा 30। तो कोफैक्टर करते हैं माइनस द पावर 1 + 3 6105, ठीक है। सॉल्व कर दो, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका आंसर पॉजिटिव ही है, सो ये भी अपना 30 हो जाएगा। ओके सो हम आप माइनर फाइंड करते हैं सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पोंडिंग। तो आप इतने करते हैं, देखो माइनर ऑफ सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो बचेगा -3 5 5 -7। सॉल्व कर देंगे 21 - 25 = -4। सो कोफैक्टर करेंगे फाइंड आप ये। सो माइनस दी पावर 2 + 1, सो ये वैल्यू कितनी है -4 है। आप डायरैक्ट आ फार्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर, ठीक है, क्यों वारी बारी सॉल्व करेंगे टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। सो ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो माइनर ऑफ सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग अपने को बचेगा 2 1 5 -7। ओके सो सॉल्व करेंगे -14 -5, सो आंसर इज -19। ओके सो इससे कोफैक्टर कर दो माइनस दी पावर 2 + 2 × -19 से सॉल्व होकर बनेगा -19, ठीक। सो माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 - 3 1 5, तो 10 + 3, सो इसका आंसर आ जाएगा 13। ओके सो इससे करेंगे आप कोफैक्टर सॉल्व जी। सो माइनस दी पावर 2 + 3 × 13, ओवरऑल आंसर आ जाएगा -13 सैकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो हम आप फाइंड कर रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को बचेगा -3 5 & 0 4। सो इन करें सॉल्व आप, सो यदा आंसर आएगा -12, ठीक है। सो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो माइनस दी पावर 3 + 1 × -12, सो ये -12 ही रहेगा। फिर आप माइनर फाइंड कर दें थर्ड रो सैकेंड कॉलम, सो थर्ड रो सैकेंड कॉलम 2 6 तो 5 4 2 6 5 4 सॉल्व किया 8 - 30, तो -22 आ जाएगा। तो फिर आप करें कोफैक्टर का माइनस दी पावर 3 + 2 × -22, तो ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव 22 आ जाएगा। सो माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बोला थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 6 -3 0, सॉल्व करेंगे सो इसका आंसर आ जाएगा 18। सो इसका कोफैक्टर भी अपना की है 18 ही आएगा, ठीक है। सो ये आप सारे कोफैक्टर के माइनर फाइंड कर चुके हैं, बट हम प्रूफ करना ये वाला प्रूफ करना A11 × A31 + A12 × A32 + A13 × A33, ठीक है। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, इन्हों पर = राइट हैंड साइड यूज करना है, ठीक है। सो देखो इसका की मतलब A11 कि पहली रो पहला कॉलम कौन है 2 है, तो A31 ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना है -12 है, प्लस फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम का एलीमेंट फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम -3 है, तो थर्ड रो सैकेंड कॉलम का कोफैक्टर कितना है 22 है। ओके सेम इसी तरह ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलीमेंट कितना 5 है, तो
थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर कितना है 18 है। सो इन सॉल्व करते हैं आप -24 -66 प्लस 90 इन्होंने दोनों करेंगे ऐड -90 प्लस 90 इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ प्रूफ करनी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके सो इस अपनी एक्सरसाइज 4E कंप्लीट। ओके।